ओके जी। The if you remind the previous two classes, so in first class we studied about the uh, uh, differential equations. Why we study differential equations? So differential equations are actually studied for finding functions. What is differential equation? Differential equation is an equation which involves derivative. What is ordinary differential equation? The differential equation in which the dependent variable is differentiated with respect to single variable. What is partial differential equations? So partial differential equations are those equations in which the derivative of dependent variable exists with respect to more than one variable. फिर हमने order पढ़ा. What is meant by order? Order means the highest order derivative involved in some differential equation. So the order of that derivative is known as the order of the whole differential equation. What is degree of differential equation? Degree of differential equation is actually the exponent or the power of the higher order derivative involved in that equation. What is linear and non-linear equations? So वो भी हमने काफी डिटेल से पढ़े थे. Then after learning basics of differential equations, we start the solutions of differential equations. So in case of solutions, we studied 4 methods in 2 classes. First two in first class, that is separable differential equation, if you remember. Second was reduced separable differential equation. Third was exact differential equation. Exact differential equation. And the fourth one was G. Integrating factor. Is it clear? Okay. ये 4 मेथड्स हमने पढ़े थे. सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस थे जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सके. So then we will be able to handle this differential equation by using the separable method. If the differential equation is not separable, then we look that every variable, that is y dash, can be written in the form of gy by x or not. If y dash can be written as a function of y by x, that is, if every variable can be written in the form of y by x, so that differential equation can be reduced to separable by taking y by x is equal to u. लेकिन आप जानते हैं कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन न तो सेपरेबल हो सकता है न वो रिड्यूस टू सेपरेबल हो सकता है. सो थर्ड मेथड हमने पर स्टार्ट किया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. उसमें हमने ये पढ़ा कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दिस इज इक्वल टू 0. अगर हम m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें और n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें और ये दोनों सेम आ जाए, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज एग्जैक्ट. और फिर उसका एक प्रोसीजर था कि हम उसके सॉल्यूशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x m होता था और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y n होता था, इफ यू रिमेंबर. सो हम इन दोनों इक्वेशंस में से एक को इंटीग्रेट करते थे. उधर से जब u मिलता था तो उसी u को विद रिस्पेक्ट टू y पर डिफरेंशिएट करते थे. सो उसी प्रोसीजर से हम इसको सॉल्व करते थे.
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। हर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता जी, हर डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्ट नहीं होता। सो हमने उसके लिए फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ा। व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक फंक्शन है जो जो हम जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के साथ, तो वो उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद एग्जैक्ट बनता है। और उस फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमने दो फार्मूले पढ़े। एक था एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन इंटू डी एक्स, एंड दूसरा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर एन एक्स माइनस एम वाई, e power nx minus my divided by m into d of x. So, लेकिन हर 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 नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड नहीं होता। मतलब अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ से फंक्शन ऑफ y आ जाए और यहाँ से फंक्शन ऑफ x आ जाए, सॉरी ये dy है, तो फिर ये दोनों इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। अगर यहाँ से फंक्शन ऑफ y आ जाए और यहाँ से फंक्शन ऑफ x आ जाए, तो फिर तो इन दोनों से मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मिला। नो सर। यस। सो फिर क्या करेंगे? तो साइंस में हमेशा, मैंने आपसे पहले क्लास में कहा था कि इन साइंस सब्जेक्ट्स देयर विल ऑलवेज ए पाथ, एंड द पाथ इज एक्चुअली फॉर यू टू स्टडी मोर एंड मोर। रास्ता हमेशा साइंस लैंग्वेज साइंस सब्जेक्ट्स में होता है, कभी भी आपका रास्ता बंद नहीं होगा रिसर्च के लिहाज से। सो देयरफॉर वी मूव फॉरवर्ड। हर मेथड में कुछ न कुछ कमी होगी। वी कैन नॉट डिफाइन सच ए मेथड whose domain is very large। domain means जो कि सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को वो हैंडल कर सके। हम ऐसा मेथड डेवलप नहीं कर सकते जो सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस को एट द सेम टाइम हैंडल कर सके। अगर हम कर सकते तो फिर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन उसी से हम फाइंड कर सकते थे। जैसे जैसे आप नई चीज़ों को डेवलप करते हैं, तो साथ साथ और भी चीज़ों का आपके जहन में और भी चीज़ें आती रहती हैं। सो ये लापाक का एक सिस्टम है कि कभी भी आप एंड की तरफ नहीं जाते। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसी तरह है कि आपको अगर एग्जैक्ट एक मेथड मिल जाए जो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सके, तो फिर आगे आप नहीं पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप आगे नहीं पढ़ेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। तो जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे और चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी और आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। सो ये अंडरस्टैंड करें कि कभी भी आप साइंस लैंग्वेज में एक ऐसा मेथड, एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप नहीं कर सकते जिसका डोमेन वेरी लार्ज डोमेन उसका हो। सो देयरफॉर ये मेथड जी 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 रिकॉर्डिंग मैं असल में आज थोड़ा सा गांव में काम था, तो मैंने दोनों क्लासेस को कंबाइन कर लिया है। तो एक क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है जी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी। सो दोनों यस एट सर। द सेम टाइम मैं नहीं चला रहा, फिर एक दूसरे की साउंड जो है मेरे ख्याल में डिस्टर्ब हो जाएगी। सो एक ही वीडियो में चला रहा हूँ। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज लीनियर
differential equations, linear ordinary differential equations, linear ordinary differential equations. सो इसके बजाय कि मैं उसको लिख लूँ, मैं एक साइलेंट फॉर्म में आपको वीडियो दिखा देता हूँ। मैं वीडियो नहीं चला रहा, मैं साइलेंट फॉर्म में उसको उसको आपको दिखा देता हूँ ताकि सिर्फ मुझे इक्वेशंस नज़र आ जाए उससे। सो ओके ओके जी, अब देखिए आप ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, वो इक्वेशन जिसमें फर्स्ट टर्म में y का डेरिवेटिव हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो, नेक्स्ट टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल खुद हो विद सम फंक्शन ऑफ x, और लास्ट टर्म में न डिपेंडेंट वेरिएबल हो न उसका डेरिवेटिव हो, तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन लीनियर है। चलिए मुझे आप ये बता दें, लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते थे? इफ यू रिमेंबर मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर किसी इक्वेशन में y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आ जाए तो वो नॉन लीनियर होगा। तो इसमें y और dy का प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहा। इट मींस अब दूसरा कंडीशन चेक करें। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन ये था कि इसमें अगर y एग्जिस्ट करता है तो y का पावर अदर देन 1 तो नहीं है, चेक करें। नहीं है, यस। इसमें डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट अदर देन 1 तो नहीं है। ओके, इसमें कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं है, साइन वाई, कॉस वाई, लॉग ऑफ वाई, ऐसे फंक्शंस तो नहीं है। सो सो फिर हम इस इक्वेशन को लीनियर कह सकते हैं। ओके, सो ये कंफर्म हुआ कि इक्वेशन 1, लेकिन अब लीनियर लीनियर इक्वेशन को हम एक दूसरे फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं कि हर इक्वेशन जिसको हम ए से लिख सके, ये नोट करें, हर इक्वेशन जिसको अगर हम ए से लिख सके वाई डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स, इस इक्वेशन को हम लीनियर कहेंगे। जिस इक्वेशन को हम ए से लिख सके वो इक्वेशन लीनियर होगा। सो ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। चले मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन ऑफ एक्स। ये लीनियर इक्वेशन है। चले अगर आप उस तरह नहीं देखते, इसमें न तो y न उसका y और dy का प्रोडक्ट है, न y का पावर अदर देन 1 है, न न उसके डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट अदर देन 1 है, न ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे नहीं देखते तो आप ऐसे देख लें, इसको हम y डैश माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यस सर। अगर हम इसमें से पी एक्स को ले ले, पी को ले ले -1 और आर एक्स को ले ले साइन एक्स, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बना उस फॉर्म में। जी ये फॉर्म बन रहे हैं ना। सो हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, नोट दिस पॉइंट, हर लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वाई डैश प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स। इसका पहचान ये है कि फर्स्ट टर्म में y का डेरिवेटिव होगा
नेक्स्ट टर्म में y खुद होगा विद सम फंक्शन ऑफ x, एंड लास्ट टर्म में न y होगा न उसका डेरिवेटिव होगा, ओनली फंक्शन ऑफ x होगा। इज इट क्लियर? लीनियर की पहचान आप कर सकते हैं अभी? यस सर। ओके। अब मुझे आप बता दें, ये r ऑफ x जो है, अगर अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा टर्म एग्जिस्ट करे जिसके साथ न डिपेंडेंट वेरिएबल हो न उसका डेरिवेटिव हो, उस टर्म को हम सोर्स टर्म कहते हैं। कौन सा टर्म? सोर्स टर्म। ओके। कौन सा टर्म? सोर्स टर्म। कौन से टर्म को कहते हैं? उस टर्म को जिसके साथ न y हो न उसका डेरिवेटिव हो, उस टर्म को आर एक्स के साथ न तो y एग्जिस्ट करता है न उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इट मींस आर ऑफ एक्स इज ए सोर्स टर्म। इज इट क्लियर? लेकिन सोर्स टर्म का मतलब क्या है? चलो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं ताकि फिजिकली आप थोड़े से आपका बैकग्राउंड बन जाए। आप आपने कभी वाटर को जब आप हीट देते हैं, वाटर को जब आप हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं जब आप लिक्विड को, सो एक तो कंडक्शन के थ्रू उसके इनसाइड एंटर होता है हीट। कंडक्शन मींस थ्रू थ्रू सम बॉडी, थ्रू सम बाउंड्री। अगर आप हीटर के जरिए दे रहे हैं तो वो उसके बाउंड्री के जरिए एंटर होगा ना। यस सर। ओके जी। उस उसकी वजह से उसके अंदर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे ना, ऑसिलेट करेंगे, मूव करेंगे। सो मोशन की वजह से उसमें कोलिजन्स होंगी पार्टिकल्स की। कोलिजन्स की वजह से खुद भी एक इंटरनल टेम्परेचर जनरेट होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सो टेम्परेचर, लिक्विड का जो टेम्परेचर चेंज होता है वो दो जरियों से चेंज होता है। वन इज व्हाट? वन इज ड्यू टू एक्सटर्नल प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अनदर इज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। जब वेलोसिटी होगी तो कोलिजन्स होगी ना। ओके जी। सो जो एक्सटर्नल टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं, जब आप इस प्रोसेस को लिक्विड को हीट देते दे के उसका टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। इस चेंज को अगर आप मॉडल करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा बनेगा? इसमें आर एक्स वाला टर्म एक एग्जिस्ट होगा। आर एक्स आर एक्स टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये ये नहीं, ये आउटसाइड डिस्टरबेंस को रिप्रेजेंट करता है। नोट दिस पॉइंट। आर एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आउटसाइड डिस्टरबेंस को। ये टर्म जो है आर एक्स एक्चुअली measure the change. Left side is the change, right side is the change due to what? An external disturbance. So Rx आपका एक्सटर्नल डिस्टरबेंस है। आपने आपने हमने एक इक्वेशन मॉडल किया था, इफ यू रिमेंबर, a इज इक्वल टू जी या डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी। ये हमने मॉडल किया था ना। जब आप किसी किसी चीज को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था ना, ये बना था ना। हमने एफ इज इक्वल टू वेट लिया था, फिर एफ को मैंने एम ए लिखा था और वेट को एम जी लिखा था। सो ए इज इक्वल टू जी आया था और उधर से मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना था। इज इट क्लियर? ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, मुझे ये बता दें।
नहीं, यहाँ पे सोर्स टर्म एग्जिस्ट होता है, सोर्स टर्म है इस इक्वेशन में। सोर्स टर्म मीन्स वो टर्म जिसके साथ ना y हो ना उसका डेरिवेटिव हो, तो ऐसा टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। जी सर। यस, दिस टर्म इज द सोर्स टर्म। ये कहाँ से आया है? ये आप किसी स्टोन को जब नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी चूंकि उस स्टोन का पार्ट नहीं है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है ना। यस सर। सो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये सोर्स टर्म कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस इक्वेशन में। इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सोर्स टर्म एग्जिस्ट करे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कौन सा? और अगर सोर्स टर्म एग्जिस्ट न करे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कहते हैं। तो सिंपली मैं ये लिख रहा हूं कि अगर आर एक्स जीरो बन जाए, मैं यहां से अगर ये देखें, if rx is equal to 0, if rx is equal to 0, then equation 1 is homogeneous. Is it clear? And if r of x does not equal to 0, then equation 1 is non-homogeneous. इस बात को गौर से देख ले। अगर इक्वेशन 1, अगर rx 0 हुआ इक्वेशन 1 में तो उसको होमोजीनियस कहते हैं। होमोजीनियस मीन्स, होमोजीनियस इक्वेशन कौन सा इक्वेशन होता है? अगर अगर किसी सिस्टम में चेंज ओनली ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, तो उस डिस्टर्बेंस को, उस चेंज को जब आप मॉडल करेंगे, सो एज ए रिजल्ट यू विल गेट होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन अगर किसी सिस्टम में इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी हो और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस भी हो, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चेंज आएगा उसको हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में मॉडल करेंगे। मेरी बात समझ में नहीं आ रही मेरे ख्याल में? अच्छा जी। ये असल में मैं दूसरे बोर्ड की तरफ, ये साइलेंट इस वजह से है क्योंकि इस टाइम पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था। तो जिस तरह मैं अभी आपके लिए मैंने एक्सप्लेन किया, इसी तरह इस क्लास में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। मैं सिर्फ बोर्ड जो नई नई चीज़ें होगी बोर्ड पे मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। सो ये देखें, अगर आर एक्स ज़ीरो बन जाए, अगर आर एक्स ज़ीरो बन जाए, सो इक्वेशन 1 क्या बनेगा? वाई डैश प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू 0 बन जाएगा। अच्छा जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। यस सर। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स उस तरफ ले जाए और वाई इस तरफ ले आए। सेपरेबल ऑफ वेरिएबल हमने कर लिए, वेरिएबल सेपरेट कर लिए। वाई का डेरिवेटिव 1 होता है, वो ऊपर मौजूद है, तो उसका यस। इंटीग्रल क्या होगा? log ऑफ वाई नहीं होगा, यस। log ऑफ वाई बना। और पी एक्स चूंकि अननोन है तो हम इंटीग्रल का साइन लगा लेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसको हम log ऑफ ई पावर माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। log ऑफ ई पावर, अगर कोई फंक्शन log में नहीं है, आप लिखना चाहते हैं log में, तो log ऑफ ई पावर में उसको लिख ले। इज इट क्लियर? यस सर। एंटी लॉग ले ले तो y इज इक्वल टू ई पावर माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इसको हम ई पावर सी, इसको हम ई पावर सी अलग लिख ले और ई पावर माइनस पी एक्स इंटू डी एक्स अलग लिख ले। ई पावर सी को C1 दे दे, सो ये सॉल्यूशन बन गया ना।
ओके जी। सो अगर एक लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस हो तो उसका सॉल्यूशन ये होगा। अगर लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस हो, अगर आर एक्स जीरो बन जाए तो होमोजीनियस होगा, तो ये उसका सॉल्यूशन होगा। अगर अगर आर एक्स जीरो ना हो, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये कौन सा इक्वेशन है, वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ये ये लीनियर Homogeneous. लीनियर होमोजीनियस है। Yes, sir. इसमें पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। Yes, sir. तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जनरल आपने सॉल्व किया है, उसका सॉल्यूशन ये है सी वन ई पावर माइनस पी इंटू डी एक्स। तो इसमें सिर्फ पी की वैल्यू सी वन अपनी जगह पे, ई पावर माइनस पी की वैल्यू एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करें तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर आर एक्स जीरो ना हो, अगर आर एक्स जीरो ना हो, ये वाला आर एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये आर एक्स जीरो ना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी एक्स आर एक्स माइनस पी एक्स वाई लिख सकते हैं इसको। अच्छा जी, अगर डी वाई हम इधर लिख लें इक्वल टू, और आर एक्स माइनस पी एक्स वाई इंटू डी वाई, पी एक्स इंटू वाई लिख ले, और साथ में डी एक्स लिख सकते हैं इसे। अगर हम इसको ऐसे लिख ले तो मुझे आप बता दें, माइनस आर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सर माइनस डी ऑफ वाई नहीं होगा? नहीं, ये मैंने उस साइड पे शिफ्ट किया ना, ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, अब मुझे आप बता दें कि dx से हम y ख़त्म कर सकते हैं, ये वाला y नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, कॉमन लेंगे तो आर एक्स के नीचे आएगा, तो सेपरेबल। यस, जी सेपरेबल से ये नहीं होगा। सो हम हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम इसको एग्जैक्ट से करें, एग्जैक्ट से सॉल्व करते हैं। सो मैं वही कर रहा हूँ आगे बोर्ड पे। मैंने मैंने m दिया पी एक्स वाई माइनस आर एक्स को, और n क्या होगा, n वन नहीं होगा। Yes, sir. ओके, सो एम वाई क्या होगा, एम वाई बता दे मुझे, एम वाई पी एक्स नहीं होगा और एन एक्स जीरो नहीं होगा। जी, एम Yes, sir. वाई पी एक्स होगा और एन एक्स जीरो होगा। अब मुझे आप बता दें, अगर ये पी एक्स जीरो बन जाए तो फिर तो एम वाई और एन एक्स इक्वल बन जाएंगे ना। Yes, sir. अगर पी एक्स जीरो नहीं है तो फिर ये इक्वल भी नहीं होंगे। Yes. सो नोट दिस पॉइंट, अगर ये y का कोएफिशिएंट जिसको हम px कहते हैं, y के कोएफिशिएंट को हम px कहते हैं, अगर ये नॉन जीरो है तो ये इक्वेशन वन हमेशा नॉन एग्जैक्ट होगा। इक्वेशन वन क्या होगा, हमेशा नॉन Non-exact. एग्जैक्ट होगा। इक्वेशन वन हमेशा नॉन एग्जैक्ट होगा अगर px नॉन जीरो हो। नोट दिस पॉइंट, अगर px नॉन जीरो हो तो इक्वेशन वन हमेशा नॉन एग्जैक्ट होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके जी। सो अगर इक्वेशन वन नॉन एग्जैक्ट है तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कैसे फाइंड करेंगे, ई पावर एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइड बाई एन, ऐसे नहीं करेंगे।
Yes, sir. अच्छा, एम वाई की वैल्यू पुट करे पी एक्स, एन एक्स की वैल्यू पुट करे 0, सो पी एक्स Zero. माइनस अगेन पी एक्स डिवाइड बाई एन विच इज 1। सो इस फार्मूले से मुझे ये फार्मूला मिला। Yes, sir. तो क्यों ना मैं इसको याद रख लूं। वो अगर याद करना आपके लिए मुश्किल है तो ये याद रख ले कि किसी भी लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा नॉन एग्जैक्ट होगा अगर पी एक्स नॉन जीरो है। नोट दिस पॉइंट, हमेशा नॉन लीनियर इक्वेशन अगर उसमें पी एक्स नॉन जीरो है तो वो नॉन एग्जैक्ट होगा, वो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। किस फार्मूले से? ई के पावर में पी का इंटीग्रल ले लें। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट दिस इज ओनली फॉर लीनियर इक्वेशंस। नोट दिस पॉइंट, दिस इज ओनली फॉर linear equations. So note this point. अब हम एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। दिस इज मुझे आप ये बता दें कि ये इक्वेशन 1 जो आपको नजर आ रहे हैं ये लीनियर है। देखिए, फर्स्ट टर्म में y का डेरिवेटिव, and second term there is y with some function of x which is tangent x, and in the last term there is no y, no derivative, only function of x। तो ये लीनियर है। Yes, sir. px इसमें क्या है? px Tangent of x. टेंजेंट ऑफ x, rx क्या है? sin 2x। सो px आपको लग रहा है कि ये जीरो है, px तो जीरो नहीं है, वो तो टेंजेंट है। Tangent. सो ये इक्वेशन 1 जो है एग्जैक्ट होगा या नॉन एग्जैक्ट होगा? Non-exact. नॉन एग्जैक्ट होगा। अगर अगर px नॉन जीरो है तो ये here px is tangent x and rx is equal to sin 2x। Which is not equal to 0. सो px अगर नॉन जीरो है तो फिर क्या होगा? ये नॉन एग्जैक्ट होगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन 1 इज नॉन एग्जैक्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? हमेशा लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमने ये फार्मूला डेवलप किया, ई पावर एम वाई एन एक्स वाला फार्मूले से हमने एक और रिजल्ट डिराइव किया, ई पावर पी इनटू डी एक्स। इज इट क्लियर? Yes. सो पी की जगह वैल्यू पुट करें। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू टेंजेंट एक्स नहीं है। Yes. सो टेंजेंट एक्स को हम साइन बाई कास लिख सकते हैं। साइन बाई कास, Yes. कास का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो ये हम ई पावर माइनस log cos x लिख सकते हैं। Yes. सो दिस इज बिकम ई पावर log ऑफ इस माइनस को कास के ऊपर ले जाए, सो ई और log एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, सो इट विल बिकम cos ऑफ -1 एंड दिस विल बिकम 1 ओवर cos x। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 एग्जैक्ट बनेगा। ओके, सो लेट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय व्हाट? 1 ओवर cos x। लेकिन 1 ओवर cos x को तो आप secant x भी लिख सकते हैं ना। सो इस y डैश के साथ अगर आप secant x मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम y डैश secant ऑफ x, और अगर y अपनी जगह पे लिख ले और secant ऑफ x मल्टीप्लाई करे तो टेंजेंट x तो होगा इक्वल टू sin 2x की जगह मैंने 2 sin x cos x लिखा, और राइट साइड पे जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ secant x उसको मैंने 1 ओवर cos x लिखा। इज इट क्लियर? यस सर। cos कैंसिल हो जाएगा। अब हमेशा नोट करें, नोट दिस पॉइंट, लीनियर इक्वेशन के साथ जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करें तो उसका लेफ्ट हैंड साइड किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा। अगेन मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, जब आप किसी लीनियर इक्वेशन के साथ व्हेन यू मल्टीप्लाई
integrating factor with a linear equation, so the left hand side of the linear equation will become the derivative of a function. किस function का? Dependent variable and integrating factor. Dependent variable and integrating factor. यहाँ पे मैं वो अच्छा जी देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लेफ्ट साइड की जगह लीनियर इक्वेशन के साथ जैसे मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया तो मैंने उसके लेफ्ट साइड को नहीं देखा, मैंने डायरेक्टली लिखा कि इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करें तो ऊपर वाले दो टर्म्स आ जाएंगे। देखिए y का डेरिवेटिव करें तो y डैश सीकंड x छोड़ दे, फिर प्लस लेके y छोड़ दे, सीकंड का डेरिवेटिव करें सीकंड इनटू टेंजेंट। इज इट क्लियर? सो हमेशा जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करें लीनियर इक्वेशन के साथ तो वो एग्जैक्ट बनेगा, या तो ऐसे करें कि एग्जैक्ट के प्रोसेस से उसको सॉल्व करें, लेकिन उससे सिंपल ये मुझे नजर आ रहे हैं कि जैसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें सो द लेफ्ट हैंड साइड बिकम द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो राइट साइड से क्या आया? cos कैंसिल 2 sin x। अब आप इंटीग्रेट करें इसको, इंटीग्रेशन से क्या होगा? इंटीग्रेशन से लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन से ये d खत्म हो जाएगा, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा ना। सो इंटीग्रेशन से ये d खत्म हो जाएगा तो y सीकंड ऑफ x आ जाएगा, लेकिन राइट साइड का इंटीग्रल क्या होगा? -2 cos x नहीं होगा, प्लस c। जी यस ओके जी। अगर y को हम 1 ओवर cos x लिख ले, y को हम 1 ओवर cos x लिख ले तो y सेपरेटली छोड़ दे और cos x को उधर शिफ्ट करे तो -2 cos x प्लस c इंटू cos x बन जाएगा। यस सर। ओके अब आप c की वैल्यू फाइंड करें। ये इनिशियल कंडीशन गिवन थी व्हेन x इज 0 y इज 1। सो x जब 0 पुट कर लेंगे यहाँ पे सो cos 0 आ जाएगा प्लस c इंटू cos 0 विच इज 1। सो c की वैल्यू क्या बनी? c की वैल्यू क्या बनी? यहाँ पे देखिए y इज 1, cos of 0 is 1, so -2 Yes sir. -2 plus. and cos of 0 is 1, so c value is 3। c की वैल्यू 3 बन जाएगी और इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करिए, यू विल गेट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज आपने आरएल सर्किट पढ़ा है? वो सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों हो उसको आरएल सर्किट कहते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा Yes. अगर आरएल सर्किट में करंट फ्लो करता है तो वहां पे कौन सा लॉ यूज करते हैं? किरचॉफ्स लॉ। सो हम ये लिखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपने पहले पढ़ा है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, यहाँ पे देखिए आर अगर है तो यहाँ पे लिखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, और अगर एल है तो प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। अगर सी भी है, आर एल सी सर्किट हुआ तो प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू ईएमएफ। तो आपको क्लियर है, आपको ये पता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर क्या है? वी आई आर के इक्वल नहीं है जी। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या है? एल डी आई बाई डी टी नहीं है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से डिनोट करे।
तो ये इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को L पे डिवाइड करें तो डी आई बाई डी टी को आई डैश लिख ले, प्लस R बाई L लिख ले, I इक्वल टू E, सॉरी दिस इज E बाई L, मैंने यस E बाई L ये लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आपको लीनियर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म में Yes, sir. I का डेरिवेटिव, नेक्स्ट टर्म में I विद सम कांस्टेंट को आप फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, एंड लास्ट टर्म में ना I ना उसका डेरिवेटिव, तो ये लीनियर है। Yes. अच्छा जी, यस इट इज लीनियर। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? I, करंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? टाइम। इसमें आर एल की वैल्यू, पी ऑफ टी की वैल्यू क्या है? और वहां पे हम R by L. पी एक्स लेते थे ना, यहाँ पे पी Yes, ऑफ टी लेके, क्योंकि आई डिपेंड्स ऑन टाइम, सो आर ओवर एल तो जीरो नहीं हो सकता ना Yes. जी। सो ये इक्वेशन 1 जो है ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर पी ऑफ टी जीरो नहीं है तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई पावर पी इंटू टी नहीं होगा? यस सर। यस, पी की वैल्यू क्या है? आर ओवर एल, R और डी टी का इंटीग्रल टी बन जाएगा, T. सो ई आर ओवर एल इंटू टी। सो मल्टीप्लाई करें ई इक्वेशन 1 को ई पावर आर ओवर एल इंटू टी के साथ, तो उसका लेफ्ट साइड ये पूरा इक्वेशन ये बन जाएगा। ये लेफ्ट साइड किसकी इक्वल होगा मुझे बता दे आप। Derivative of function dependent variable multiplied by integral. जी, Integrating factor. डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल इज आई, Yes. और मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग Integrating फैक्टर। factor. जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई आर ओवर एल टी। अब आपने लेफ्ट साइड को नहीं देखना, आप अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वही आएगा। अब आप इंटीग्रल करें, सो इंटीग्रल से ये डी खत्म, लेफ्ट साइड का इंटीग्रल सिंपल होता है, उधर से डी खत्म हो जाएगा, ई ओवर एल अपनी जगह पे, ये ई आर ओवर एल इंटू टी डिवाइड बाई आर ओवर एल आ जाएगा प्लस सी। जी, आ रहा है ना? देखिए, अगर e पावर 2t होता है उसका इंटीग्रल e पावर 2t डिवाइड बाई 2 नहीं होता। अच्छा जी, Yes, sir. सो अब आप ऐसे करें कि इधर से i की वैल्यूज i सेपरेट करें और i फाइंड करें इसकी वैल्यू। ये बन गया। जी, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली ने ये काम किया था, अगर आप एक इक्वेशन ले ले, सपोज जी, अगर आप एक इक्वेशन ले ले y डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू आर ऑफ एक्स, ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर है। Yes sir. अगर इसके साथ एक y पावर a आ जाए और a जो है वो जीरो भी ना हो, a does not equal to 0 and a does not equal to 1, a अगर जीरो बन जाए तो फिर तो ये लीनियर बन जाएगा ना, y पावर 0 इज 1। Yes sir, linear. सो a अगर जीरो भी ना हो और अगर a 1 बन जाए, a अगर 1 बन जाए तो फिर क्या बनेगा? ये बन जाएगा y डैश प्लस, फिर linear नहीं होगा सर। फिर भी लीनियर बन जाएगा ना? फिर भी लीनियर होगा जी, क्योंकि सर तो R जी दिस विल बिकम y एंड दिस इज इक्वल टू 0, अगेन लीनियर बन जाएगा ना?
ये फंक्शन ऑफ Yes, एक्स, sir. ये y डैश है, ये y है विद सम फंक्शन ऑफ x, और वो टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसमें ना y ना उसका डेरिवेटिव है, तो फिर ये Yes, sir. होमोजेनियस बन जाएगा और लीनियर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, सो अगर अगर a 2 बन जाए तो ये नॉन लीनियर बन गया ना। Yes, sir. लेकिन नॉन लीनियर तो अगर हम यहाँ पे 2 कर ले ये भी नॉन लीनियर है ना। लेकिन बर्नौली ने सिर्फ उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हैंडल किया था जिसमें नॉन लीनियरिटी सोर्स टर्म के साथ एग्जिस्ट करे। नॉन लीनियर इक्वेशंस बहुत सारे हैं, उसने सबका सॉल्यूशन नहीं निकाला था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर मेथड में वीकनेस होती है, उसी वीकनेस के बेस पे आप आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने नॉन लीनियरिटी, उन्होंने कहा कि अगर नॉन लीनियरिटी सिर्फ सोर्स टर्म के साथ हो तो उसको उन्होंने हैंडल किया था, उसको उन्होंने लीनियर में कन्वर्ट किया था, उस नॉन लीनियर टर्म को उन्होंने लीनियर में कन्वर्ट किया था। कैसे कन्वर्ट किया था? वो कह रहे हैं कि अगर, नोट करें इस पॉइंट को, वो कह रहे हैं कि अगर बर्नौली इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, नोट दिस पॉइंट, वो इक्वेशन जिसमें नॉन लीनियरिटी सोर्स टर्म के साथ हो, बाकी दो टर्म्स ऐसे ही हो जैसे लीनियर इक्वेशंस में होते हैं, उस इक्वेशंस को बर्नौली कहते हैं। बर्नौली इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्नौली ने उसका सॉल्यूशन ढूंढा था, बर्नौली ने उसको लीनियर में कन्वर्ट किया था। जिस तरह हमने सेपरेबल के लिए रिड्यूस टू सेपरेबल पढ़ा, एग्जैक्ट के लिए नॉन एग्जैक्ट पढ़ा, नॉन एग्जैक्ट को फिर हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते थे, इसी तरह लीनियर के लिए नॉन लीनियर बर्नौली इक्वेशन हम पढ़ रहे ताकि उसको लीनियर में कन्वर्ट करें। इज इट क्लियर? Yes, sir. जी। सो अगर हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छा जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अच्छा जी, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसको हम बर्नौली कहते हैं, इसको लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें u, और उसको इक्वल ले ले y पावर 1 माइनस a, तो इस सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन 1 लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? u इज इक्वल टू y पावर 1 माइनस a। इज इट क्लियर? और a क्या है? a सोर्स टर्म के साथ जो y है उसका पावर है। सो हम एक एग्जांपल करते हैं। देखें, ये इक्वेशन जो है, जो आपको नजर आ रहे हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं y डैश माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. ये आपको बर्नौली इक्वेशन नजर आ रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टर्म y का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म में y खुद विद सम कांस्टेंट वैल्यू का आप फंक्शन ऑफ x ले सकते हैं। थर्ड टर्म में सोर्स टर्म भी है माइनस b, लेकिन साथ में y पावर a भी है। सो दिस इज बर्नौली इक्वेशन। Yes, sir. बर्नौली ने उसको कैसे कन्वर्ट किया था? उन्होंने कहा था कि अगर आप u ले ले तो इक्वेशन 1 इज बर्नौली, BDE मींस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे phi की वैल्यू क्या है? माइनस a नहीं है। Yes, sir. a की वैल्यू क्या है? 2 yes. 2 है। सो u को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट u इज इक्वल टू 1 y पावर 1 माइनस a। सो y पावर 1 माइनस 2 बन जाएगा ना, बिकॉज a इज 2। सो u इज इक्वल टू y पावर माइनस 1।
u इज इक्वल टू 1 over y. पावर माइनस 1। जी, इस u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करे तो u डैश बन जाएगा, इस y का भी करे तो -1 नीचे आ जाएगा, y पावर -2 बन जाएगा, और ये y जो है ये दिस इज नॉट y एक्चुअली, दिस इज y डैश। इज इट क्लियर? Yes. अच्छा जी, इधर से y डैश की वैल्यू निकाले, y डैश की वैल्यू क्या होगी? माइनस u डैश बाई y पावर -2 नहीं होगी? जी जी। Yes, sir. अच्छा, ये इक्वेशन 1 जो है आपको बर्नौली इक्वेशन नजर आ रहे हैं, ये मुझे बता दें। ओके, अगर ये बर्नौली है तो P का सिलेक्शन करें, P इज -a एंड a इज 2। सो बर्नौली इक्वेशन में हमेशा नोट करें आप u को इक्वल लेंगे y पावर 1 - a की वैल्यू 2 पुट करें तो u क्या बन जाएगा? y पावर -1। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी, u का डेरिवेटिव क्या होगा? u डैश y पावर -1 का डेरिवेटिव पहले पावर का करेंगे, हाँ। पावर नीचे ले आए, Yes, फिर sir. पावर से एक कम करे, Subtract हम y पावर n -1 करते हैं ना, or सो without part derivative. ये तो y पावर -2, फिर y का भी करेंगे, y का y डैश आ जाएगा। इज इट Yes. क्लियर? Yes, sir. ओके जी, इधर y की वैल्यू निकाले और s को इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा, देखिए y डैश की जगह -u डैश बाई y पावर -2 पुट करें, -ay अपनी जगह पे इज इक्वल टू -by स्क्वायर अपनी जगह पे। जी, अब u डैश छोड़ दें, ये -y पावर -2 इधर मल्टीप्लाई करें तो ये सॉरी मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गलती की है, इसको आप करेक्ट करें, ये प्लस a इंटू वाई पावर -1 आ जाएगा। जब y के साथ y पावर -2 मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के बेसिस सेम होंगे, पावर z हो जाएंगे, तो y पावर -1 नहीं होगा, Yes, sir. लेकिन ये प्लस a होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट करें क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना। Yes, sir. अच्छा जी, जब -y पावर -2 -by स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस b नहीं आएगा, प्लस b, Yes, sir. और Yes. y पावर -2 जब मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ y पावर 0 आ जाएगा ना। Yes, sir. तो इधर इस साइन को ठीक कर ले, ये प्लस b है और ये प्लस a है। तो अब आप मुझे बता दें कि एस y पावर -1 किसके इक्वल था? u के इक्वल नहीं था, y पावर -1 इज इक्वल टू u, Yes, sir. और ये -b बन गया। अब ये इक्वेशन 2 आपको लीनियर नजर आ रहे हैं? Yes, sir. सो लीनियर में कन्वर्ट हो गया ना, सो इक्वेशन 2 इज लीनियर। अब लीनियर के लिए क्या करें? इसमें p किसके इक्वल है? -a के इक्वल नहीं Minus है, a. Yes, sir. तो विच इज नॉट 0, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e पावर p इंटू dx मीन्स e पावर -a इंटू dx विच इज e पावर -ax। यहाँ तक क्लियर है? Yes. इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन 2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा u डैश मल्टीप्लाइड बाई e पावर -ax माइनस au मल्टीप्लाइड बाई e पावर -ax माइनस b एंड e पावर -ax। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा? D into u dash or integral multiply by लेफ्ट साइड क्या integrating बन factor. जाएगा? u multiplied by integrating factor, dependent variable is u multiplied by integrating factor is e power -ax, this one, which is equal to -b e power -ax। लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन से सिर्फ ये d खत्म हो जाएगा, लेकिन राइट साइड से क्या आएगा? b e पावर -ax डिवाइड बाई -a नहीं आएगा। Yes, sir. सो देखिए प्लस c, अब u किसके इक्वल था? u किसके इक्वल था? 1 ओवर y के इक्वल नहीं था। Yes, sir. सो u की जगह 1 ओवर y पुट करें
और ये इस e पावर माइनस ax को उधर शिफ्ट करे तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये b बाई a आ जाएगा, यहाँ पे प्लस c है तो ऊपर जाके e पावर प्लस ax बन जाएगा। दिस इज सॉल्यूशन। सो हमने एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज 1.5 से पहले एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 छोड़ दें, एग्जाम्पल 4 हमने कर लिया। और एक्सरसाइज नोट करें 1.5, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 3 to 13 एंड 22 to 28। ये 3 to 13 जो है डायरेक्टली लीनियर है, और ये 22 to 28 जो है ये बर्नौली है, उसको लीनियर में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है। हो जाएंगे ना? ओके। सो ये बाकी क्लासेस में भी मैंने यहाँ तक पढ़ाया है। सो आपके लिए भी मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन है क्लास के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।